हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूकीज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वील बी स्टार्टिंग विद द 2025 एसे पेपर का सेक्शन बी और आज का हमारा टॉपिक है मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर वीडियोज़, आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन के लिए वी फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हम क्यू फेस बेस्ड इंट्रोडक्शन आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं यूकी की हेल्प से। क्यू फेस इज एन एक्रोनिम. इट स्टैंड्स फॉर कोट, फैक्ट, एनेक्डोट, करंट कंटेक्स्ट एंड एग्जाम्पल. यूकी की हेल्प से वी एक्सप्लोर ऑल दीज आइडियाज़ एंड वट एवर यू लाइक यू पिक दैट फॉर योर इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एलिमेंट इज क्यू विच स्टैंड्स फॉर कोट. तो यहाँ यूकी ने कोट दिया है. Let's see what it says. As Lao Tzu wisely remarked, muddy water is best cleared by leaving it alone. तो यूकी यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा एस्से टॉपिक है, this itself is a quote and this quote was given by Lao Tzu. Lao Tzu is a Chinese philosopher. आपने एक वो कोट सुना है, The journey of 1,000 miles begins with a single step. इस कोट को हम कितनी बार यूज करते हैं अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन में, just to keep ourselves motivated. That quote is also given by Lao Tzu. So now you know two quotes given by Lao Tzu. The first one is the journey of 1,000 miles begins with a single step and the second is muddy water is best cleared by leaving it alone. So यहाँ जो muddy water की बात है, this is a metaphor for a conflict वाली situation, for chaos, for a difficult situation. और उससे बाहर निकलने का एक तरीका क्या बताया है Lao Tzu ने? It is best cleared by leaving it alone. मतलब Lao Tzu is emphasizing on the virtues of patience, non-interference, restraint practice करने को बोल रहे हैं. Lao Tzu is saying कि कोई अगर situation खराब हो भी जाती है, if there is any conflict, so you should allow that situation to settle first. You have to wait before you act in such situations. Sometimes inaction is better than action. You have to allow time to heal the situation. This is what he's talking about. तो आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे का स्टार्ट कर सकते हो by talking about Lao Tzu, the Chinese philosopher, and explaining what he's trying to say in the quote. Let's now come to the second way of introducing your essay, which is fact. तो यूकी ने यहाँ एक फैक्ट दिया है. Studies in conflict management reveal that over 60% of disputes de-escalate naturally when given time and space, rather than through immediate intervention. तो आपने एक टर्म सुना होगा कूलिंग ऑफ पीरियड. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है तब रिजल्ट्स आर बेटर. आप एक्चुअली इस सिचुएशन को इन्वायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हो. अपने इन्वायरमेंट में इफ़ यू ऑब्जर्व अ डिग्रेडेड इकोसिस्टम and if it is left undisturbed for some time, it naturally starts to regenerate. ये हमने कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम भी देखा था कि river streams and even air, all of these started to get clean by themselves naturally. तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को muddy water is best cleared by leaving it alone. You can link it with conflict management. You can even link it with environment and ecology. So this was your fact. Let's now come to the third element, which is anecdote. यहाँ पे यूकी ने अयोध्या क्राइसिस का एग्जाम्पल दिया है. During the 1992 अयोध्या crisis, hasty interventions led to widespread unrest, but subsequent mediation efforts that allowed tempers to cool. Mediation efforts से क्या हुआ? Tempers were cooled. The situation was settled. Time was given. That resulted in a more peaceful resolution, and a more long-lasting resolution. This is how you link your anecdote to the topic. Let's now come to the third element, which is the current context. Current context से when you link your essay topics तो बहुत interesting बन जाता है. Examiner को पता चल रहा है कि आपको current situation की कितनी अच्छी knowledge है. So let's see what Yuki is talking about here. In today's fast-paced world, आज के fast-paced world में, you know this is the time of instant messaging, immediate action, सबको immediate response चाहिए. तो आज के fast-paced world में leaders and administrators they often face pressure to act swiftly. However, the COVID-19 pandemic highlighted the importance of thoughtful restraint. कोविड-19 पैंडेमिक में क्या हुआ? इट अलाउड अस टू फॉलो द वेट एंड वॉच अप्रोच.
कोविड-19 पैंडेमिक में हमने लॉकडाउन्स लगाए एंड इवन मास वैक्सीनेशन करने से पहले देवर वैक्सीन ट्रायल्स। तो वेट एंड वॉच अप्रोच की हमने इम्पोर्टेंस सीखी कोविड-19 पैंडेमिक में, रिस्ट्रेंट की इम्पोर्टेंस सीखी। सो यू टॉक अबाउट दिस, यू टॉक अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक एंड देन अगेन यू हैव टू लिंक इट। द लिंकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंट्रोड्यूस तो कैसे भी कर लो बट इट हैज़ टू रिलेट विद योर टॉपिक। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। लेट्स नाउ कम टू द फिफ्थ एलिमेंट विच इज एग्जाम्पल। यूकी ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है साउथ अफ्रीकन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। अब ये क्या है? तो लेट्स गो बैक टू 1950s इसको समझने के लिए। 1950s के टाइम पे साउथ अफ्रीका में apartheid सिस्टम वॉज वेरी प्रेवलेंट। इट वॉज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सेग्रीगेशन। तो यहाँ वाइट पीपल ने सारी पावर ले रखी थी और ब्लैक पीपल के पास कुछ राइट्स नहीं थे। तो 1950s में जब ये apartheid सिस्टम एंड हुआ, अब साउथ अफ्रीका के पास दो चॉइसेस थी। फर्स्ट वॉज टू एक्ट इमीडिएटली एंड पनिश एवरीवन हु वाज इन्वॉल्व्ड, and second choice was to actually understand कि what has happened. So they went the second way. उन्होंने establish किया साउथ अफ्रीकन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। और इस कमीशन में क्या हुआ? The victims and even the perpetrators they came forward, they shared their experiences. जो guilty थे उन्होंने apology भी ली, जो guilty थे उन्होंने apologize भी किया। So this commission was established और इससे South Africa healed, although this process took time, but it healed. So again, you talk about South African Truth and Reconciliation Commission and you link it with the topic कि muddy water is best cleared by leaving it alone. Time को allow करना कि वो situation को heal करे, this is very important. So that is how you can discuss all of these. And इसमें से यूकी की हेल्प से we've discussed all of these. इसमें से whichever you like, you pick that and write your introduction. But the rest of the points, please remember them like I said in the last video, क्योंकि इनको हम body में use करेंगे to substantiate our arguments. Now after setting the right tone for your introduction by using a catchy intro, Q-face format से जो हमने सीखा, now it's time that you structure the body of your essay also well. तो इसको भी हम यूकी की हेल्प से सीखेंगे। यूकी हमें बताएगा कि व्हाट आर्ग्यूमेंट शुड कम नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स आपस में लिंक्ड कैसे होंगे, एस्से में ऑर्डरली स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। पहला आर्ग्यूमेंट यूकी ने क्या दिया है? इट सेज पेशेंस लीड्स टू नेचुरल रेजोल्यूशन, मेनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व देमसेल्व्स व्हेन गिवन टाइम। तो बेसिकली आपको टाइम को इस्टेब्लिश करना है एज अ नेचुरल हीलर। पेशेंस leads to natural resolution. Whenever a situation escalates, instead of immediately acting, we need to practice patience. We need to practice restraint and allow time to heal the situation. And once the situation is settled and you gain some clarity about the situation, that is when you act. That is how muddy water is best cleared by leaving it alone. तो इसका evidence एक example यूकी दे रहा है। Conflict resolution studies show that a cooling off period often leads to more amicable settlements. This we have already discussed जब हम introduction discuss कर रहे थे. So in case you have not used that fact for your introduction, आप उसको यहाँ use कर सकते हो to substantiate this argument. The next argument which Yuki gives is non-interference prevents escalation. कोई situation escalate ना हो उसके लिए it is important to practice non-interference. It says over-involvement can complicate issues. In community disputes, mediation is often more effective after initial tempers have subsided. इसको आप पॉलिटी से भी लिंक कर सकते हो कि सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स पहले मीडिएशन के थ्रू सॉल्व होते हैं। इसके लिए वी हैव द मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023. सो जस्ट अ रिमाइंडर कि इफ़ यू हैव नॉट रेड मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023 तो पॉलिटी के लिए उसको प्लीज़ पढ़ें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आप उसको सोशल जस्टिस में यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन इवन यूज़ इट इन योर एसेज। तो ऐसे ही जो हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं उससे हमारी एसे की बहुत हद तक प्रेपरेशन हो जाती है। इससे पहले भी डिस्कस्ड अबाउट इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स का लिंकेज का एग्जाम्पल दिया था। कोविड-19 की वैक्सीन्स का एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही पॉलिटी से मीडिएशन एक्ट यू कैन लिंक इट इस ऐसे में कैसे यूज कर सकते हो, आपको समझ आ गया। लेट्स नाउ कम टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। इट सेज विजडम इन रिस्ट्रेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाउ यू आर लिंकिंग दिस एसे टॉपिक टू योर फ्यूचर प्रोफेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना।
ये चीज़ आप अपने एसे में लिखो। एग्जामिनर को बताओ दैट यू आर ऑलरेडी कमिंग विद द माइंडसेट ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, यू आर रेडी टू बी अ सिविल सर्वेंट। अपने एसे के थ्रू हमें एग्जामिनर को बताना है। सो इट सेज सिविल सर्वेंट्स मस्ट डिसर्न when intervention is necessary and when restraint is prudent. As a civil servant आपको पता होना चाहिए कब आपको एक्शन लेना है और कब आपको एक्शन नहीं लेना. Excessive regulation और माइक्रो मैनेजमेंट कैन स्टिफल इनोवेशन एंड क्रिएट डिपेंडेंसी. अगर बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे होगी, एंड दैट इज गोइंग टू स्टिफल इनोवेशन. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना. यहाँ पे आप एम्फेसाइज कर सकते हो सिविल सर्वेंट्स, लीडर्स, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं द वैल्यूज ऑफ पावर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली एज सिविल सर्वेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट से भी आप यहाँ इसको लिंक कर सकते हो कि सिविल सर्वेंट को कब एक्शन लेना चाहिए, कब एक्शन नहीं लेना चाहिए, कहाँ रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करें. दिस इज हाउ यू क्रिएट लिंकेजेस. अगेन यहाँ पे एथिक्स का पेपर आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आ गया. सो दैट लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल इंटेलिजेंस. इससे कैसे लिंक करते हैं? प्रैक्टिसिंग पेशेंस इनहैंसेस सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. Reacting impulsively can damage relationships and reputations. Leaders who pause before responding to criticism are often more respected. तो यहाँ पे आप APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दो. You can even watch his videos. Whenever he was questioned about national issues, whenever he was criticized on the scientific setbacks, he would always reflect, pause, and he would always reply with a lot of humility. वो उनके videos में भी, उनके interviews में भी नजर आएगा. So you can mention his example over here. Let's come to the final argument, societal harmony and conflict management. Societies that value dialogue and patience tend to be more harmonious. यहाँ पे आप इंडिया का एग्जाम्पल दो. इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे डील करता है? वी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू पीस टॉक्स, वी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू कॉन्वर्सेशंस, टू डिप्लोमेसी, संवाद से समाधान, सल्यूशन थ्रू डायलॉग. इंडिया के इस अप्रोच को आप यहाँ लिंक करो. तो अब आप इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर होता है हमारा जनरल स्टडीज 2 का, उसके भी लिंकेजेस आ गए आपके एस्से में. तो जनरल स्टडीज की एक होलिस्टिक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एस्सेज में नजर भी आएगा. कहीं आप इकोनॉमी से कंसेप्ट यूज कर रहे हो, समवेयर फ्रॉम साइंस एंड टेक, समवेयर फ्रॉम IR, वो एग्जामिनर को ओवरऑल दिखेगा भी कि हाउ वेल read you are. So this was the 5th point. That now brings us to the conclusion of our essay. Conclusion में we link it with Buddhism, Buddhist philosophy से. So that relates with your art and culture part. Art and culture में Buddhist philosophy सब पढ़ते हैं. Buddha preaches mindfulness, Buddha preaches detachment. तो Buddhism philosophy से आप इसको link कर सकते हो कि when the mind is disturbed तो clarity नहीं आती. जब माइंड डिस्टर्ब्ड है वो मडी वाटर की तरह है, और उसको क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस. सो व्हेन यू प्रैक्टिस पेशेंस द मड सेटल्स डाउन एंड देन यू गेट क्लैरिटी. स्टिलनेस ब्रिंग्स क्लैरिटी, दिस स्टिलनेस ब्रिंग्स इनसाइट. So this is how you link it with the Buddhist philosophy and say that muddy water is best cleared by leaving it alone. अब इसके बाद क्या करना है? You already know, you know the drill. You sit down and write this essay by yourself. We'll see you next Sunday with another 2025 UPSC asked topic. Till then, stay tuned and keep watching.